بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین، پچھلے کچھ ہفتوں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سرفراز احمد صاحب کسی نہ کسی کنٹروورسی میں الجھے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ کبھی سلمان بٹ صاحب سے الجھ پڑتے ہیں، کبھی وہ کالج والا معاملہ آ جاتا ہے۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے بہروپ نگر سے آج ہمیں جوائن کیا ہے سرفراز احمد صاحب نے۔ السلام علیکم شاہ جی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ مگر سرفراز احمد صاحب سے گفتگو سے پہلے آپ اور رقیب العال کیا بات ہے، لاجواب۔ سامنے بٹھا کے تصویر بناوا جی کردا میرا تینوں ویکھی جاواں رب کولوں منگا خیر تیریاں ہر ویلے منگا خیر تیریاں۔ آج آپ نے آواز میں کچھ درد محسوس کیا ہوگا۔ میں یہی کہنے جا رہا تھا، آواز میں بھی درد ہے، کپڑے بھی بڑے سادہ سے پہنے ہیں آج آپ نے، رنگ بھی سادہ ہے۔ سادہ لباس والے سب ایمان پر، سادے سے ڈریس میں بڑی شاندار تھی۔ جب دل کا موسم ہی اچھا نہ ہو تو پھر کپڑوں کا رنگ کیا ہوگا شاہ جی؟ کمال یہ ہے کہ میرے شعر آپ کو یاد ہو گئے بہت سارے۔ آپ بھی مجھے کافی یاد ہے۔ جی شکریہ۔ دیکھا مل لے ہوں، چلو میرا پتر اٹھو نکلی ہوں۔ جدو انہیں 2 بسکٹ 1 کپ چاہ دا تسی تے عمران خان صاحب نے بھی اگے لنگ گئے۔ یہ کون صاحب ہے؟ پیسے لگے نے، رقماں لگیاں نے لمیاں، پروموٹر ہاں میں پروموٹر۔ بہت بڑے پروموٹر ہیں۔ کہاں کہاں انہوں نے شوز کروائے ہیں؟ نہیں وہ اور ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ بننا چاہتے ہیں۔ میرے ساتھ آج بہت بڑے میوزیشین بھی آئے ہیں۔ جی 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 جی۔ اجاز حسین صاحب 22,000 دینا ہے انہاں دا، انہیں دیندے کیوں نہیں؟ میں کہ جنہاں کو لینا انہوں کو لے کے جانے تھا۔ میں جس زمانے میں رات گئے کیا کرتا تھا، بڑے بڑے خوبصورت لوگ اس وقت کام کرتے تھے، طاہر صاحب تھے، دیگر لوگ تھے، تو اعجاز صاحب بھی تشریف لاتے تھے وہاں۔ آپ بھی ویسے جوانی میں بہت رات گئے کرتے رہے، ہمیں تو آپ زیادہ تر دن گئے ملتے ہیں۔ سعد محمد علی صاحب ہیں، جی جی جی۔ یہ ماشاءاللہ طبلہ بہت اچھا بجاتے ہیں، پہلے باکسر تھے آج کل مریض ہیں۔ یہ بتائیے کہ اس اداسی کی، اس سادگی کی کیا وجہ ہے آج؟ دل کبھی کبھی اداس ہو جاتا ہے، آپ کو تو پتہ ہے دل کا موسم ایک اور چیز ہوتی ہے۔ جی جی، کوئی شک نہیں، کوئی شک اوپر کیا دیکھ رہے ہیں، کو بیٹھ رہا ہے؟ نہیں۔ میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا اداسی بھی بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے۔ اداسی سے اس وقت آپ کو کیا یاد آ رہا ہے؟ جب بھی یہ دل اداس ہوتا ہے، جانے کون آس پاس ہوتا جب بھی یہ دل اداس ہوتا ہے، یہ منوس میرے آس پاس۔ ہے۔ رفیع صاحب یاد آ گئے۔ ہائے ہائے، وہ بھی بہت بڑی دنیا ہے۔ یہ پچھلے دنوں لتا جی کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ جی ہاں۔ ہاں، بہت بڑی فنکارہ او یس۔ آپ کو لتا جی پسند تھی؟ ہاں، مجھے لتا جی اور میڈم بہت پسند تھے، میڈم نور جہاں۔ ویسے آپ نے لتا جی کا کچھ نہیں گایا، چونکہ آپ کا ٹون بھی ذرا مختلف ہے، کوئی لتا جی کی کوئی چیز اگر سنا دیں۔ رسم الفت آہ، کو نبھائیں کیسے، واہ واہ۔ رسم الفت کو نبھائیں آہ، کو نبھائیں کیسے، ہر طرف آگ ہے دامن کو بچائیں کیسے، رسم الفت کیا کیا
اچھا آج کل کیا کر کیا رہے ہیں شو کے میں؟ علاوہ؟ اور میں آج کل بس شو کی تیاری ہوتی ہے اور پڑھتا رہتا ہوں. وہ کتابیں پڑھتے رہتے ہیں؟ جی یہ کتابیں پڑھتا رہتا کون سی کتاب شروع کی ہے؟ ہوں. کافی ساری کتابیں آج کل میرے زیر مطالعہ. ہسٹری کی کچھ ہیں. کوئی ایک کتاب پہ آپ کا فوکس کیوں نہیں ہوتا؟ جی یہ میرا پرابلم ہے. آپ کا پرابلم ہے مجھے پتہ ہے. 40-50 پیج کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اب بھائی ذرا تھوڑا سا کسی اور موضوع پہ کچھ پڑھ لیا. اچھا ایک کتاب کے 40-50 پیج پڑھ کے پھر دوسری کتاب کی طرف جاتے ہاں ہیں؟ پھر دوسری طرف پھر تھوڑا سا اس سے ذرا بور ہوئے تو پھر کوئی نئی کتاب اٹھا لی یا پھر پہلی کی طرف واپس آ گئے. اس طرح سے آپ تو اچھے آدمی نہیں ہیں. بے شمار لوگ یہی کرتے ہیں کہ بدل بدل کر کتاب پڑھتے ہیں. میرے مطالعے میں بھی بیک وقت کم از کم بھی 8-10-12 کتابیں ہوتی ہیں. زیادہ سے زیادہ 4 کتابیں ہونی چاہیے. نہیں 10-12 چل رہی ہوتی ہیں. اس میں شاعری بھی ہے, ناول بھی ہے, انگریزی لٹریچر کی بھی چیزیں ہیں. 8-9 کتابیں کس طرح افورڈ کرتے ہیں؟ اچھا ایک کتاب پڑھتے ہیں تو دوسری ناراض نہیں ہو جاتی؟ تو ناراض ہوگی. کتابوں میں ویسے تو ایک زندگی ہوتی ہے. بڑے ٹیکنیکل آدمی 8 کتابوں کا ذہن بنایا ہوا ہے. نہ کوئی کسی سے لڑتی ہے نہ جھگڑتی ہے. یار ویسے یہ بڑا اچھا موضوع ہے نظم کا, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک کتاب میں پڑھ رہا ہوتا ہوں, پھر جب میں دوسری کتاب کی طرف بڑھ جاؤں تو اس میں سے آواز آتی تو پہلی کتاب پر واپس آتے آتے بعض اوقات کئی دن لگ جاتے ہیں. تو نظم کا اچھا موضوع ہے کہ جب آپ لوٹ کر آئے تو پہلی کتاب خفا ہو گئی ہے نا. مجھے بہت نفرت ہے اس لیے بندوں سے. کیوں؟ پرانی کتاب چھوڑ کے نئی کتاب کے پیچھے دوڑ پڑے. سانو کسے کتاب چ نہیں لکھیا کہ سانو کچھ دینا. میں ابھی منگواتا ہوں لفافہ وغیرہ, اس میں کچھ ڈال کے پیش کرتا ہوں. نواں کلام لکھیا وہ دے دینا. ایٹ اے ٹائم کتنی کتابیں پڑھ لیتے ہیں؟ دیکھیے 4 سے 6 کتابیں تو ہر وقت میرے سراہنے ہوتی ہیں. ایڈے تسی جون سینا. کتابوں کو سراہنے بٹھایا ہوا ہے. ویسے آپ جتنی کتابیں پڑھتے ہیں نا اپنی ڈائٹ کا خیال کیا کریں. اوہو اتنی ٹھنڈی آہیں کیوں بھر رہی ہیں آپ؟ با میں آپ کے بارے میں سوچ رہی تھی 4-5 کتابیں اگر اکٹھی پڑھ لے تو کبھی گش پڑا, کبھی نیند کا غلبہ آیا ہو. تر و تازہ ہو جاتا ہوں. 6 کتابیں پڑھ کے تر و تازہ ہو جاتے جی ہیں. جی. آپ کہیں جن تو نہیں ہے؟ تو سائنس میں آج کل کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ جو مریخ پہ جا رہا ہے انسان آج کل, اس میں بڑی میری دلچسپی ہے. اگر آپ مریخ پہ جائیں اور ساتھ کتاب ہو. ارے تو اور کیا چاہیے. ہاں ہوتے تھے چھاپا بھی نہیں پڑھتے. اچھا سرفراز صاحب یہ بتائیے کہ اگر سلمان بٹ نے کوئی تنقید کر دی تھی آپ پہ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ آپ نے ٹویٹ ٹھوک مارا تم فکسر ہو اور یہ ہو اور وہ ہو. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ پوری دنیا میں کیا میسج جائے گا. دیکھیں جو لوگ اس بول کو آن فیلڈ بیچ سکتے ہیں وہ میرے پہ تنقید کیسے کر رہے ہیں. دیکھیں میں نے آج کتنا میں نے اچھا میں نے کھیلا, جو میرے پہ تنقید کر رہے تو ان کو پٹے ہاتھ کے میں نے پہلے ایسے کیونکہ بہت اچھی بات ہے, جو بھی جواب دینا ہے بلے سے دیں. میرے دور میں چیمپئن ٹرافی پاکستان میں لے کے آئے, انڈیا کے منہ سے ہم چیمپئن ٹرافی چھین کے لے کے آئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کوہلی جب آؤٹ ہوا ہے وہ کیسے آؤٹ ہوا ہے؟ عامر نے آؤٹ کیا تھا. نہیں میں نے پیچھے سے آواز لگائی تھی. وہ بات تو بیچ میں ہی رہ گئی. اداسی کا سبب تو بتائیں. پہلے تو میں اداس تھی, اب پریشان ہو گئی ہوں. کیوں؟ ایٹ اے ٹائم 8 کتابیں یہ کوئی اچھی بات نہیں. کسی ایک کتاب کے ساتھ تو شمشیر ہو جائے. آپ سے کچھ پوچھنا چاہیے. جی 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 پوچھیے. امی کی سنائیں کیا حال ہے؟ ہاں اللہ کا شکر ہے بہت. باہر کا ٹور آپ کا بہت اچھا رہا ہے. جی والدہ کے ساتھ بہت ہی وقت گزارنے کا موقع ملا. الحمد اگر مجھے پتا ہوتا تو میں بھی ان دنوں وہاں کو پروگرام رکھ لیتی. یورپ میں. ہاں امی کے ساتھ ٹائم گزر جاتا تو خدمت کرتی. نہیں میری اہلیہ نے بڑی خدمت کی, بڑا خیال کرتی. نہیں میں ان کے پیر دبانا چاہتی ہوں. وہ دباتے ہیں میرے بچے, بیگم, میں, ہم سب دباتے ہیں. وہ تو خدمت کرتے ہی ہیں لیکن جس سر میں دباؤں گی ساتھ امی کو گانے بھی سناؤں گی. ہاں ویسے میرا سلام کہتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں میں واقعی کہتا ہوں, اور وہ ہمیشہ آپ کے لیے دعاؤں کا تحفہ بھیجتی ہیں. اوپنلی سب کے سامنے کہتے ہیں, چھپ کے کہتے ہیں. مجھے پتہ ہے آپ چھپ کے سلام کہتے ہیں. اچھا مجھے گھر میں لطیف لطیف کہہ لیا کر. کھل کے پکارنے سے آپ کا شعر یاد آ گیا. کون سا؟ مختلف ہیلوں بہانوں سے مجھے سوچتے آئے ہائے مختلف ہیلوں بہانوں سے مجھے سوچتے ہو, ایک دن کھل کے پکارو گے میرا نام بھی. ہاں تو اس پہ عمل بھی کرے نا. ہر نام کھل کے کیسے پکارے انسان, خوف رسوائی بھی کوئی شے ہوتی ہے. لے لیا کرے نام, آپ کی گھر میں رپورٹ اچھی ہے. چلے آپ مجھے گھر میں نہ ڈوکا کہہ لیا کرے. اچھا آپ نے یورپ میں پہلے ٹور کیا ہے؟ اتنے ٹور کیے ہیں, ہر ٹور میں ناڈوخا میرے ساتھ ہوتا ہے. اوہو. یاد ہے ناڈوخا جب ہم اسپین گئے تھے؟ کیا کہنے, کیا دنیا. کس زمانے میں گئی تھی آپ اسپین؟ میں اس وقت گئی تھی جب بل فائٹنگ پہ پابندی نہیں تھی. وہ تو ابھی چند
साल पहले लगी। असल में एक बुल को कोरोना हो गया, उन्होंने फाइट ही बंद कर दी। तो आपने देखी बुल फाइटिंग? हाँ, बहुत बड़ा स्टेडियम था, उधर बुल ही बुल थे, बहुत मजा आया, बड़ा क्राउड था उधर। अच्छा, नाडू खान भी साथ थे? नाडू खां भी था। नाडू खां में को मैं एज बुल लेके गई थी। नाडू खां को मैंने बैलों के साथ बांध दिया। बैलों ने तो इनका हशर कर दिया होगा। नहीं नहीं, और कुछ नहीं, बस इसके बुल सूजे हुए थे। ये भी बुल बन के ग्राउंड में आया है। हाँ। एक बंदे ने इसकी तरफ लाल कपड़ा फेंका है, हाँ। ये रोटियां ले आया। मैंने वहां नाडू खां पे बड़े पैसे लगाए। मैंने सोचा ये को फाइट जीते, हमारे हालात को बेहतर हों। ये ऐसा चोर का पुत्र है, वहां से एक बुल उठा के पाकिस्तान ले आया। ये कैसे मुमकिन है? बुल पे बैठ के। ये बुल को लाल रुमाल दिखाता था, वो भागता था। अच्छा ये बताइए, ये क्या मामला है आपका कॉलेज वाला? कराची शहर के अंदर कोई जगह नहीं है बच्चों के खेलने के लिए, ठीक है। अब बच्चे कहाँ पे खेले? सड़कों पे खेले। वो तो ठीक है कि सरफराज अहमद एकेडमी आप बनाना चाह रहे थे, मगर ये प्लॉट का क्या मामला हो गया? कॉलेज वाले कहते हैं कि आपने कब्जा किया हुआ है, हालांकि मैंने मुर्जा वहाब साहब का बयान देखा, उन्होंने साफ कहा कि ऐसी बात नहीं है, मगर फिर भी आपका नाम क्यों आया इस सारे मामले में? दुश्मनी जो है मेरे ये मसला खला करते बना खुद मैंने तो इसके पैसे मैंने दिए भाई। लेकिन अगर आपके पास कागजात मुकम्मल हैं तो फिर कोई क्यों दावा करेगा? वैसे भाई मेरे कागजात असल में सलमान बट ने गायब कर दिए हैं। सलमान बट का इस सारे मामले से क्या ताल्लुक? ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਗਵਾਚੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲਮਾਨ ਬੱਟ ਨੇ ਉਠਾਈ ਹੈ, देखो खपा पे पाया क्या किधर आई है। आप ये बताइए कि क्रिकेट देखती हैं आप? मैं तो जो कुछ देखती हूँ बता ही दूंगी। जी जी पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब दें जनाब जनाब। कि जितने क्रिकेटर होते हैं ये साई लोग क्यों होते हैं? आप वो नेशनल ज्योग्राफिक देखते हैं, इस वक्त उसका जिक्र कहाँ से आ गया? आप अभी भी नेशनल ज्योग्राफिक देख रहे हैं। शाह जी तुसी कल्ले नहीं देख रहे, असी भी वही चैनल लाया है। हाँ है, ये तो वही गुरीला नहीं है जो ज्योग्राफिक चैनल में छोटे बांदरों को ठुड्डे मार रहा हो। नाज़रीन, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है न्यूज़ एंड वायरल वीडियोस के कोलाश का, और जो पहली खबर मैंने प्रोग्राम में शामिल की है वो जापान से आई है। एक जापानी जोड़ा छुट्टियां गुजारने के लिए अमेरिका जा रहा था। लंबी फ्लाइट थी, कुछ 10-12 घंटे की। तो मौसूफ खुद बैठ गए बिजनेस क्लास में और अपनी अहलिया को उन्होंने इकोनॉमी में बिठा दिया। हाय हाय। अब वो खबर बहरहाल बाहर आ गई तो मौसूफ ने बाकायदा सोशल मीडिया पर लिखा, लोगों से पूछा कि भाई इसमें क्या बुराई है? जहाज में 2 ही सीटें रह गई थी, एक इकोनॉमी की एक बिजनेस की। मैं बिजनेस में बैठ गया, बीवी को मैंने अपनी इकोनॉमी में बिठा दिया, इसमें क्या बुराई है? यानी कि उस अल्लाह के बंदे को ये एहसास ही नहीं था कि ये किस कदर पस दर्जे की हरकत है। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਕੁੱਟਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। तेरा बंदा तेरे इस को जहाज नहीं लिखा। ਚਲੋ ਜਹਾਜ਼ ਨਾ ਸਹੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਣੇ ਸਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖਿੜਕੀ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸਾਂ। वो खिड़की वाली साइड पे इसको इसलिए बिठाता था कि उन्हें धक्का देना चाहता था, बल्कि कई बार आप थले बंदा सी बाजी ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਣਾ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨੇ ਲਾਣਾ ਥੱਲੇ। ਇਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। एक दिन ਇਹਨੂੰ बहुत गुस्सा चढ़िया बीना ਨੂੰ, फिर ਇਹ गुस्से 'ਚ ਬੱਸ ਚੁੱਕ के घर ले। अच्छा यार, वैसे हनी साहब, जब आप फैमिलीज के साथ ट्रैवल करते हैं हाँ जी तो आपके तो 8-10 लोग हो जाते होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बिजनेस क्लास में सफर करते होंगे ज्यादातर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहली और दूसरी बेगम दोनों को बिजनेस क्लास में बिठाते हैं? नहीं, मैं बिजनेस क्लास में बैठा हूँ, दो भी जहाज चलाउंडी होंगी। नहीं, तो खर्चा तो फिर बढ़ता है ना। ਹੱਥੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ। खर्चा बढ़ जाए वो मैनेज हो जाता है, लेकिन अगर पारा बढ़ जाए तो वो प्रॉब्लम है। अच्छा ये बताइए, जब भी आपकी बेगमात का जिक्र छिड़े तो आप उर्दू में क्यों गुफ्तगू शुरू करते हैं? उर्दू में काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती है, मसलन गुस्सा, तकलीफ। नहीं ऐसा हुआ कभी आपने एक बेगम को एक टूर करवाया, पहली बेगम ने इतराज़ किया हो भाई बाद में तुम दूसरी बेगम को लेके गए थे और मुझे तो वहाँ नहीं लेके गए? नहीं, मैं बैलेंस रखता हूँ। इस दर्जे का बैलेंस आप कायम कर लेते हैं? जी जी जी, जो भी कोई लड़ाई के मूड में आता है मैं फ़ौरन 10,000 रुपये और दे दूँ। मैं तो शायद इतना बैलेंस रखता हूँ, मुझे याद होता है कि इसके साथ मेरी 35 तस्वीरें उतरी हैं, उसके साथ 34 उतरी हैं, और एक तस्वीर में मैं दोनों इकट्ठे खिंचा लेंगे। इससे एक बात तो तय हो गई कि आपकी बेगमात तस्वीर तक का हिसाब रखती हैं। आप इतनी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कब मुबारकबाद के मुस्तहिक होना चाहते हैं? नहीं, मैं इससे दूर हूँ, मैं वैसे एक ही उसमें खुश हूँ। नहीं इंटरव्यू तो तुसी ऐसे नहीं लिया कि चांस है यार, लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि तस्वीर तक का हिसाब रखा जाता है इस रिश्ते में। क्या जी, तस्वीर तो फिर तस्वीर है, उसके ऊपर जो कमेंट होते हैं उसका हिसाब देना पड़ता है। वाकई? हाँ जी, हाँ जी। कैसे? अगर एक तस्वीर पे दिल भेजा
दूसरे को दिल नहीं भेजा, फूल भेज दिया। तो इसमें क्या है? तो एतराज किया मुझे दिल क्यों भेजा, फूल भेज दिया। फिर तो अगर दिल भी भेज दिया तो पहले कहे कि फूल क्यों नहीं भेजा। अगर दोनों को फूल और दिल भी भेज दिया तो उन्होंने कहा इकट्ठा क्यों भेजा। और अगर मैंने और जो हर तरह के फेस बने होते हैं, कोई इंगी, वो भी अगर सारा कुछ भेज दिया तो फिर भी इतराज है कि आप क्यों भेजा, हांडी रोटी तेरे प्यो ने। जी मर्द कितना भी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो लेकिन उसकी टेंशन डेवलप रहती है 2 शादियों में। अगर बंदा साहिब हैसियत है तो मेरे ख्याल इसमें कोई मजाक नहीं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो करनी चाहिए। अगर आप 2 जगह से एक टाइम में रोटी खा सकते हैं तो करनी चाहिए। यार ये है कि एक पास में कपड़े पा के आए, उन्होंने कहा आज कपड़े उधर से चेंज कर लिए, मैं उधरों भी कपड़े हैं तो उत्ते कपड़े पाए। ये आज भी यकीन करो मैं 2 पैंटा ठीक है, मुझे यकीन आ गया। अच्छा जनाब, ये जो साहब जिन्होंने अपनी फैमिली को पीछे बिठा दिया और खुद बैठ गए बिजनेस क्लास में, ये हमारे साथ मौजूद है, जरा इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? इनका नाम है जावियार मेजी। आप इनकी अहलियां हैं? जाहिर है। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇੰਜਦੀਆਂ बहुत गुस्से वाले ने। ਬਹੁਤ ਮੈਲੇ ਵੀ ਨੇ ਪਤਾ। ये आपका बेटा है? जी ते ए मेरी नूह है। अच्छा मेजी भाई ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਿਲਦੀਆਂ है रईस आदमी है ये? माशाल्लाह जी, अपनी हीरे दियां काना ने इन्हां दियां। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀਰੇ ਚੂਸ ਚੂਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਛੋੜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਆਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਹੀਰਾ ਚਟੀਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੀਰਾ ਛੱਡੇ ਤੇ ਹੀਰਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अगर इतने ही रईस आदमी हैं ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਾਸਟਿਊਮ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋਏ। ਬੜੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ, ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਨੇ। ਪਾਗਲ ਨੇ ਨਾ ਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 10 ਵਾਲਾ ਉਧਰ 5 ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। अच्छा मिस्टर मेजी सुन लेते? जी जी क्यों नहीं? क्या आपने पहली बार किया कि फैमिली को इकोनॉमी में बिठा दिया? ये हमेशा यही करते हैं? ਨਹੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਚਵਲਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ तो फैमिली पीछे खोता रेडी ते आ रही हो। यार ऐसा कैसे कर लेते हो तुम यार? जी बिजनेस क्लास की टिकट थी 8 लाख की। ਓਏ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਾਰ ਕਰਤੀ ਸੀ। जी मैं गया 8 लाख में और इनको मैंने 2-2 लाख में भेजा। बताएं आप फायदा हुआ कि नहीं? अच्छा जी ये वाहद मुसाफिर है जिसकी वजह से उन्होंने जहाज की खिड़की खोल ली इसे। क्या फायदा हुआ? अगर 15-20 लाख रुपए बच भी गए, पैसे बच गए, फैमिली आपने हार दी। तकरीबन 20 लाख मैंने बचाया। उस 20 लाख से 5 लाख की मैं इनको शॉपिंग करा दूंगा और आप बताएं 15 लाख फिर बच गया ना। ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਆ। अच्छा बाजी ਦਾ ਨਾ ज़हनी तवाज़ुन भी खराब हो गया। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੁੜੇਲ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਹਨ। ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾ ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। वैसे करते क्या है बीबी ये? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾਲ ਮੋਬਲਾਈਲ ਪਾਉਂਦਾ ਮੋਟਰ। ਮੇਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਜ਼ਫ ਕਰ ਦਿਓ ਕੀ ਪਿਆਰੇ। ਕਿ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਸਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਪੁੱਛਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਟੇ ਪੜਾਏ। नहीं आपकी लव मैरिज थी? जी मेरी तरफ से। मेजी को तो मैं पसंद ही नहीं थी। ਹਾਂ ਮੇਜੀ ਉਦੋਂ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। मेजी मेरा फोन नहीं सन चुकदे। ਕਿਉਂ ਟੁੰਡੇ ਸਣ ਮੇਜੀ। ये बताइए। मेजी से बात कर रही है मुझसे। नहीं नहीं मैं आपसे जानना चाहता मैं इन्हों दे सामने गैर बंदे नाल गल नहीं करदी। ਇਹ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਗੈਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾ ਤੇ ਮੇਜੀ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। हूं। कितनी वर्थ है इनकी? ਟਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। 200 अरब डॉलर ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। मैनेजर चेक मंगवा के ना अंदर से बाहर पैसे आप बहू हैं जी इनकी? जी कैसे ससुर हैं ये? बहुत अच्छे हैं पापा, मेरा तो बहुत ख्याल रखते हैं। नहीं आपको तोहफे ताहिफ देते हैं या आपके साथ भी ऐसे ही सलूक रखते हैं?
नहीं, मुझे तो बहुत गिफ्ट्स देते हैं, हर किसी न किसी त्योहार पे कुछ ना कुछ बहुत अच्छा गिफ्ट मसलन मसलन पिछले महीने इन्होंने मुझे एक शैम्पू ला कर दिया था, बल्कि बाहर से मंगवाया था स्पेशली मेरे लिए। हाँ मेजी गली चो लंघे ना लोग ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਸੁੱਟਦੇ ਉਹ ਸ਼ੈਂਪੂ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੱਟੀ ਵਿੱਚ थोड़ा ਜਿਹਾ ਸ਼ੈਂਪੂ। उससे 4 महीने पहले पापा ने मुझे एक लिपस्टिक ला कर दी थी, पूरे $1 की थी। $1 शॉप तो लेती सी ना। और उससे भी 5 महीने पहले जब हमारी शादी हुई थी ना, तो पापा ने मुझे एक सुरमादानी गिफ्ट की थी, वो भी पूरे $1 की थी। $1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਚੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਜੀ ਨੂੰ ਦੰਦਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मेजी में से क्या खाते पीते? ये सब औरतें पाइनएप्पल का एक फ्रेश जूस का ग्लास मंगवाते हैं, आधा खुद पीते हैं, बाकी हम तीनों में तकसीम कर देते हैं। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕੰਨ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। अच्छा देखिए, इस खबर को मैंने ख़ास तौर पे प्रोग्राम में शामिल इसलिए किया था कि मैं बस कम 3 लोगों को जानता हूँ जो इस किस्म की हरकत करते हैं। फैमिली देखिए नाम किस चीज़ का होता है, फैमिली नाम ही है दुख सुख में साथ चलने का। वाह। जब दुख है और पूरी फैमिली मिलकर उस दुख को फेस करती है, शेयर करती है, तो दुख नहीं रहता है, ठीक है ना, या दुख की शिद्दत कम हो जाती है, तकसीम हो जाता है। इसी तरीके से जब खुशी का मौका आता है या फरावानी आती है तो उसे भी पूरी फैमिली में यकसां तकसीम होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि हेड ऑफ़ द फैमिली का अपना मकाम होता है, कुछ कारोबारी तकाजे भी होते हैं, मगर हेड ऑफ़ द फैमिली को फिर उसमें अपनी अहलिया को ज़रूर शरीक रखना चाहिए। उसका नतीजा क्या होता है, ऐसे लोग सारी ज़िंदगी जोड़ते रहते हैं और फिर एक दिन मर जाते हैं। वो फैमिली में जाना तो होता ही है। अपनी ज़िंदगी में जो कुछ अल्लाह ने आपको दिया है, अगर आप खुशी खुशी अपनी फैमिली को उसमें शरीक करेंगे, उनमें तकसीम करेंगे, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, आपकी मोहब्बत में भी इजाफा होगा। और फैमिली पे खर्च करने की इंतहाई अहमियत है, बल्कि इसका हुक्म आया है। जी जनाब आकाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम आप देखिए। 1 दिनार जो कोई शख्स अल्लाह की राह में खर्च करता है, एक वो दिनार जो ग़ुलाम आज़ाद करवाने की गर्ज से खर्च किया जाए, ये भी अल्लाह की राह में हुआ। एक वो दिनार जो फ़कीर को खैरात कर दिया जाए, ये भी अल्लाह की खुशनुदी के लिए इंसान करता है। और एक वो दिनार जो अपने अहले खाना पर किसी ने खर्च किया। आकाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि वो दिनार जो अहले खाना पर खर्च किया, उसका अजर उन बाकी 3 दिनारों से ज़्यादा है। सुभान अल्लाह। वाह वाह। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि फैमिली पर खर्च करना किस कदर अहमियत का हामिल है। और एक बात मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा कि जब हम खैर की कोई भी बात सुनते हैं ना, तो उसमें से खैर ही निकाला करें, कजबहसी नहीं करनी चाहिए। अब किसी शख्स के यहाँ अगर फैमिली में एक बच्चे के पास 10-10 जूते हैं और 2-2 गाड़ियाँ हैं और सैकड़ों कपड़े हैं, और उसके बाद वो 1000 रुपये देते हुए भी ये सोचे कि भई ये मैं फैमिली पे खर्च करूँगा, तो नहीं। इसलिए कि देखिए नियतों का हाल अल्लाह जानता है, बेशक। ठीक है ना। तो बात बुनियादी ये है कि फैमिली की ज़रूरियात पूरी करना अफजल है, वाह। उसके बाद अल्लाह दे तो फिर खल्क़ खुदा पे भी खर्च करें। क्या बात। थोड़े से वक्फे के बाद वापस आए। वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। वक्त हुआ है कहावतें जो ज़िंदगी बदलने का, और आज जो कहावत हम प्रोग्राम में डिस्कस करने जा रहे हैं, ये उर्दू की उन कहावतों में से एक है जिसका इस्तेमाल निस्बतन कम होता है। तो उर्दू में कहते हैं कि तलवों से तो आग लगी है। जी। ये भी कहा जाता है कि तलवों से तो आग लगी है, और ये भी कुछ लोग कह देते हैं कि तलवों में तो आग लगी है। जब कोई शख्स किसी कज़िये के मामले में, किसी झगड़े में या किसी और मामले में भी किसी हाकिम को या किसी ताकतवर शख्स को या जिसके पास इख्तियार हो, उसको कुछ दे दिलाकर, खिला पिलाकर, रिश्वत देकर अपने हक में कर ले, तब इस कहावत का इस्तेमाल किया जाता है कि तलवों से तो आग लगी। अब इससे पीछे जो कहानी जुड़ी है, जहाँ से कहा जाता है कि ये कहावत निकली है, इसने जन्म लिया है, तो बहुत ही दिलचस्प है। तो ज़रा इसकी कास्टिंग कर लेते हैं पहले। ओ भाई जी, मैंने विच बादशाह दा रोल दिव्या है, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। नहीं तो ऐसे लोगों को की कहांगे कि 1 सेकंड दा बादशाह बादशाह बन के की करना तुसा? एक बारी बढ़न ते दियो। वरना खैर करे, जिन्ना तू कमजोर है, सिक्के ते तेरी फोटो भी नहीं आनी। अच्छा, इसमें बादशाह है नहीं वैसे इस कहानी में, जिससे इस कहावत ने जन्म लिया है, मगर 4 इसके बुनियादी किरदार हैं। तो छोटा मोटा एक देश उड़ा है। तू ये जना सुंडी दा रोल। एक है गांव का चौधरी, अच्छा जी। चौधरी मैं। चल तू तो गया ना। वो हो गए इमरान साहब, और 2 ऐसे लोग हैं जिनका आपस में अराजी पर तनाज़ा हो गया। एक हो गए हामिद साहब और एक हो गए पाशा साहब। क्या कहने किथे लड़ाई पवाई मैंने तो मैनू लून ला के खा जाना शाह जी। और अच्छा तुहानू पता हर गल दा माइंड कर रहे हैं। एक हो गए मीरासी,
ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀਤੀ ਜੇ। वैसे आप कास्टिंग में इतना ज़्यादा देर लगाते हैं? और तेरे ते लानत होए दाल पाने वाले बम्बू। देखिए अब जो शो चला रहा होता है ना, थोड़ा सा तो इस्तेहकाक होता है उस गरीब के पास कि जैसे चाय चलाए। वो तो ठीक है, मगर इतनी देर अच्छी नहीं है यार। अच्छा हो जाए बंदा उर्दू बोल के ना दुआ करो तो यार मैंने माफ कर दो। आपका हक है, लेकिन उसका ठीक इस्तेमाल करें। आप भी कुछ साबुन इस्तेमाल करें। तो पाशू पाशी वैसे आज मुझे अंदाजा हुआ है जी जी। कि सच के लोग दुश्मन हैं। ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। देखो रोबी मेरी बात सुनो, जी दुनिया मुझे खोता कहे, चाचा कहे, मामा कहे, फुफड़ कहे, तुम सिर्फ मुझे पाशा क्या करो। पाशा मैं कप तेरी पुड़पुड़े च मार देना। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਗੋਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਗੰਦੀ ਹੈ। अच्छा मैं कहावत की तरफ बाद में बढ़ूंगा, मगर ये आपको क्यों कहें पाशा? मैं इनके लिए सिर्फ पाशा ही हूँ। ਉਹ ਪਲਿਆ ਚੂਹੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹੋ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੱਝ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਦਈਏ ਨਾ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਦਈ ਜਾਂਦੀ ਨਾਲ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ। तो चार मेन किरदार हैं इस शिकायत की जिससे ये कहावत निकली है। एक हो गया इमरान जो कि गांव का चौधरी है, दो वो लोग हो गए जिनका आपस में ज़मीन का तनाज़ा है, एक हो गए पाशा साहब, एक हो गए हामिद साहब, और एक उस गांव के चौधरी के मिरासी साहब हैं जो हो गए अकमल राय साहब। वाह जी वाह क्या बात है। मरासी ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਨਫੀਸ ਲੋਕ। ਬਾਜੀ ਤੇਰਾ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੂੰ ਸੰਦੂਰ ਲਾ ਲਵੇਂ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਲਸ ਸੰਦੂਰ ਐਵੇਂ ਲਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਸੀ ਪਾਸ਼ਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੀਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਨੇ ਕੁਛ ਐ ਚੁੱਕ ਲੈਣ। अच्छा जनाब, हामिद का और पाशा साहब का तनाज़ा चल रहा था। जैसे होता है इब्तिदा में दोस्त अहबाब ने उस मामले को हल कराने की कोशिश की, फिर ख़ानदान वाले आ गए और बात पहुंच गई अदालत में। क़िता अराज़ी पर हामिद का भी दावा था और पाशा साहब का भी दावा था। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੀਆਂ। अब जब अदालत में पहुंच गई तो अदालत में फिर गवाहान को बुलाया जाना था। अदालत में फाइनल फैसले का दिन आ गया और उससे पहले चौधरी की गवाही जो थी इस सारे मामले में, यानी कि इमरान की, वो इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गई, क्योंकि चौधरी की गवाही पर ही अदालत ने फिर फाइनल फैसला देना था। तो पाशा ने क्या किया कि अदालत से पहले बाहर कहीं कमरे में सब बैठे हुए थे, पाशा ने जाकर चौधरी साहब की जो पगड़ी थी उसके अंदर सोने की एक अशरफी रख दी और खामोशी से उनके कान में बता भी दिया कि आपकी पगड़ी में मैंने सोने की एक अशरफी रख दी। अब अकमल मिरासी ने क्या किया कि ये बात जाकर हामिद को बता दी और एक सोने की अशरफी हामिद से भी ले ली। वाह। अब बिल्कुल अदालत लग चुकी थी और आवाज़ें पड़ रही थी और चौधरी का बुलावा आ रहा था। तो हामिद जल्दी जल्दी गया और हामिद ने जाकर चौधरी साहब की पगड़ी में कुछ डालने की कोशिश की। तो चौधरी साहब ने चूं चना से काम लिया। इतनी देर में चौधरी साहब अपना खुस्सा पहन रहे थे। हामिद ने क्या किया कि 10 सोने की अशरफियाँ उनके खुस्से में डाल दी। ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁੱਸਾ ਲੱਗਾ। ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। मेरा पैर पड़वाते। अब वक्त भी नहीं था इतना कि चौधरी खुस्सा तब्दील करता, लोग देख लेते। तो वो भी खामोशी से पैर डालकर खुस्से में नीचे अशरफियाँ और वो चला गया अदालत में। अब जब अदालती कार्रवाई शुरू हुई तो चौधरी साहब का झुकाव जो था वो हामिद की तरफ हो गया। ठीक है, यहाँ ये जहन में रखिएगा कि चौधरी साहब को पता है कि पगड़ी में क्या है और जूते में क्या है, या मिरासी साहब को पता है। ठीक है, और हामिद को भी पता है कि पाशा ने रिश्वत दी थी। पाशा को नहीं पता कि मेरे रिश्वत देने के बाद 10 अशरफियां हामिद ने भी रिश्वत दे दी है, जो कि चौधरी साहब के जूते में। तो पाशा के अलावा सबको पता है। अब चौधरी साहब ने बयान हामिद के हक में देना शुरू कर दिया। जब हामिद के हक में देना शुरू कर दिया तो पाशा को परेशानी हुई। पाशा था भी इस मामले में हक पे और फिर रिश्वत भी उसने दे दी थी। लेकिन थोड़ी देती है ना। तो उसने कहा यार यानी कि ये क्या कर रहा है, मेरे खिलाफ बोलता चला जा रहा है तो फैसला मेरे खिलाफ हो जाएगा। तो अदालती कार्रवाई के दौरान ही पाशा ने चौधरी साहब से कहा, चौधरी साहब आपकी पगड़ी में कुछ है, आप झाड़ के देखें जरा। हाँ बिल्कुल, उसने यही कहा। मकसद ये याद दिलाना था कि भाई आपको मैंने कशरी भी दी हुई है सोने की, मेरे हक में क्यों नहीं बोलते, मेरे हक में बयान दें। हाँ आबले पड़ गए जुबान में। चौधरी साहब ने अपना वजन और डाल दिया, हामिद साहब की तरफ सुनी अनसुनी कर दी। तो फिर पाशा बोला, चौधरी साहब को आपकी पगड़ी में कुछ है, जरा झाड़ के देखें। तब मिरासी बोला कि चौधरी साहब पगड़ी में क्या देखेंगे, इनके तलवों से तो आग लगी है। तो जब कोई राशि हक छोड़कर नाहक का साथ दे रहा हो, उस मौके पर फिर ये कहा जाता है कि ये क्या बोलेगा भाई, इसके तो तलवों से आग लगी है।
مزارے نے کہی نہیں جوائن صاحب نے کہا تھا تو تیلے والا غصہ پالش کرا لیا پاشا جی روبی جی میں اچھا بادشاہ میلا بھی ہے اور انا بھی ہے اور تھوڑا تھوڑا بولا بھی ہے ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੱਪ ਨਾਲ 2000 ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਝਮਕਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਪ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੱਪ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਪਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ हाँ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਰੈਂਟ ਏ ਗੈਂਡਾ नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। आपको जबरदस्त स्टूडियोज लिए चलते हैं जहां इकरा और फराज पेश कर रहे हैं मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू। जी सवाल बैंड। कामयाबी को नहीं हमने तुम्हें चाहा है, कामयाबी को नहीं हमने तुम्हें चाहा है, हम तुम्हारे हैं भले हो गए नाकाम भी तुम। चल दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।